Hello everyone, my name is Shani Sharma. Welcome back to my channel Learn With Shalini. So children, today we have to continue with the second part of our chapter Rise of Nationalism in Europe. Let's start with the chapter. So, the making of nationalism in Europe. If you look at the map of mid-18th century Europe, you will find that there was no nation states as we know them today. So children, we had discussed this before also, that what we see today in the map of Europe, or what we see the area of Europe, it is not exactly the same in the mid-18th century. Okay, it was an empire at that time. It is not a nation state, or you can say it was not a country at that time. Okay, so what we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose ruler had their autonomous territories. Okay, so ये जो countries जो हम आज देखते हैं वो उस समय they were divided in the small kingdom, यानी कि इनका further इन countries का division हो रखा था. Okay, duchies कह सकते हैं हम, cantons यानी कि कुछ Dutch लोगों के अंडर में था, कुछ cantons थे whose ruler had their autonomous territory. Autonomous मतलब independent. Okay, उनकी अपनी territories थी. Clear है? So Eastern and the Central Europe were under autocratic monarchies. Autocratic means absolute monarchy. Absolute means a person who does not have any restriction on his power. Okay, जो बिल्कुल जिसकी powers जो है वो unlimited है, उसके above कुछ भी नहीं है. He is the, you can say he is the supreme source of power. Okay, monarchies within the territories of which lived diverse people. Okay, यानी कि ये वो territories थी monarchies के under में थी जहाँ पे diverse people यानी कि different background से different language speaking जो लोग थे वो यहाँ पे रहते थे. Okay, they did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. Okay, so अभी हमने क्या डिस्कस किया, डाइवर्स पीपल थे, यानी कि उन लोगों में कोई कलेक्टिव या कॉमन कोई आइडेंटिटी या कॉमन कल्चर नहीं था. ओके, often they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups. Ethnic means cultural groups. Okay, so this was the condition, you can say, in the mid-18th century. So the Europe was not the same that it was before. Okay, such differences did not easily promote a sense of political unity. Okay, so diverse लोगों में it is not possible कि एक political unity हो. ठीक है, so it was very difficult at that time. Okay, the only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor. Allegiance का मतलब क्या होता है? Loyalty. यानी कि उन लोगों के बीच में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं थी, उनका आइडेंटिटी, उनका कल्चर, उनका जो लैंग्वेज स्पीकिंग जो है, ठीक है, या फिर उनमें और भी कोई बहुत सारे डिफरेंसेस थे, उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं था. एक कॉमन फैक्टर जो था वो क्या था? लॉयल्टी टूवर्ड्स देयर एम्परर. ओके, हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज. यानी कि अभी हमने टिल नाउ वी हैड डिस्कस द मीनिंग ऑफ द नेशनलिज्म. धीरे धीरे एक तरीके से राइज होना, नेशनलिज्म राइज होना कैसे शुरू हुआ, लोगों में किस तरीके से फीलिंग्स इनकलकेट हुई, अब उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. और एक आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, अपना जो नेशन स्टेट का आइडिया किस तरीके से इमर्ज हुआ, या लोगों में ये जो फीलिंग है वो किस तरीके से इनकलकेट हुई, उसके बारे में हम इसमें फर्दर पढ़ेंगे. नाउ द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी. एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या होते हैं? वो लोग होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं रूलिंग क्लास. ओके, जो रूलिंग क्लास है, जो प्रॉस्परस क्लास है, वो ऑटोमेटिकली, देखो हम कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही चीज़ अप्लाई हो रही कि क्योंकि वो जो रूलिंग क्लास है वो पावरफुल है, रिच है, उनके पास पैसा है, तो ऑटोमेटिकली क्या बन गई? वो डोमिनेंट क्लास बन गई ऑन द कॉन्टिनेंट. द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ common way of life that cut across the regional divisions. They owned estates in the countryside. Estates means हम कह सकते हैं property, and also town houses. They spoke French for purposes of diplomacy and in high society. Okay, so ये हम कह सकते हैं common class जो है, जो ruling class जो prosperous थी, वो उस समय क्या थी? dominant थी, और उन सबका जो motive था वो same ही था, to rule over the other inferior classes. Okay, and their common language was French. Okay, so they used to communicate in French.
द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द पेजेंट्री. ओके, सो रूलिंग क्लास जो है वो माइनॉरिटीज़ में थी, कम थी, ठीक है. और जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो थी तो वो क्या थी, वो पेजेंट्री थी, यानी कि फार्मर्स की हम कह सकते हैं, ठीक है. यानी कि जो फार्मर्स या लेबर्स या आर्टिसंस थी उनकी ये क्लास थी. ओके, मेजर पॉपुलेशन उनसे कंसिस्ट हुई हुई थी. ओके, इन वेस्टर्न एंड द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड meant the growth of towns and the emergence of the commercial class. ओके, सो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, या हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से वहाँ पे एक कॉमर्शियल क्लास यानी कि एक बिजनेस क्लास जो है वो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं डेवलप हो गई थी. क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया तो एक जो क्लास हो गई बिजनेसमैन की वो भी तब वहाँ पे अराइज हो गई थी. ओके, और यू कैन से बिजनेस क्लास और यू कैन से कमर्शियल क्लासेस. इन द वेक ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, न्यू सोशल ग्रुप्स केम into being, a working class population and middle classes made up of industrialists, businessmen, professionals in France and parts of the German states. Okay, तो दोस्तों देखो हम मेजर जो पॉपुलेशन है वो पेजेंट्री की थी. फिर कुछ कंट्रीज़ में क्या था, मेजर जो पॉपुलेशन थी वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से कमर्शियल और जो हम कह सकते बिजनेस क्लास जो है वो धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग या डोमिनेंट होना शुरू कर दिया. ओके, दिस ब्रॉट अबाउट द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द अबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस. तो यहाँ पे ये जो क्लासेस जो डेवलप हुई थी, तो यानी कि जब आप डेवलपमेंट होता है आपका या एडवांसमेंट आता है या हम एजुकेशन के थ्रू जब हमारे यू कैन से बिहेवियर या हमारे थिंकिंग में जब चेंज आता है तो अवेयरनेस भी आती है. ओके, सो इससे क्या हुआ, नेशनल यूनिटी जो है, जो बिजनेस क्लास जो डेवलप हुई, दे स्टार्टेड रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ द नेशनल यूनिटी. तो उनमें वो चीज़, क्योंकि एडवांसमेंट इतना चेंज हुआ, इतना डेवलपमेंट हुआ, तो उनकी थिंकिंग में भी क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ. तो उससे उनमें एक सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी जो है वो उनमें डेवलप होनी शुरू हो गई. ओके, फॉलोइंग द अबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी, फॉलोइंग यानी कि नेशनल यूनिटी डेवलप होने के बाद में उनके मन में ये फीलिंग डेवलप हो गई कि अबॉलिशन खत्म कर देना, किसको, एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को खत्म करना. ओके, सो ये फीलिंग उनमें अराइज हो गई. नाउ व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर. लिबरल नेशनलिज्म, लिबरल का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, दैट विल डिस्कस. फिर उसके आगे हमने एक जो हम कह सकते हैं नेशनलिज्म को हमने ऐड कर दिया. तो इसका मीनिंग क्या होता है, द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर. ओके, लैटिन वर्ड जो है लिबर, उससे बना है ये वर्ड लिबरलिज्म, जिसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, फ्री. लिबरलिज्म इज अ पॉलिटिकल एंड मॉरल फिलॉसफी बेस्ड ऑन लिबर्टी, कंसेंट ऑफ द गवर्नड यानी कि पीपल, एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ. यानी कि लिबरलिज्म का मतलब क्या था, हम कहते हैं ना वी आर लिबरल, हम लिबरल यानी कि हम कह सकते हैं ब्रॉड माइंडेड एक तरीके से. ठीक है, सो लिबरलिज्म एक फिलॉसफी है, एक थिंकिंग है जो किस पे बेस्ड है, एक आइडियोलॉजी है. ठीक है, विच इज़ बेस्ड ऑन लिबर्टी. ओके, कंसेंट ऑफ द गवर्नड यानी कि जिन लोगों पे गवर्नमेंट रूल करी है उनका कंसेंट होना, एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ. इक्वालिटी बिफोर द लॉ मतलब क्या है, ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ. लिबरल नेशनलिज्म, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म. अब हम पढ़ेंगे लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है. लिबरल नेशनलिज्म रिफर्स टू इंडिविजुअल फ्रीडम. ओके, इंडिविजुअल, हर एक सिटीजन जो कंट्री का है उसकी फ्रीडम. एंड ऑफ ऑटोक्रेसी यानी कि जो हम कह सकते थे जो एब्सोल्यूट मोनार्की का जो रूल है उसका एंड होना. एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस मतलब जो स्पेशल जो क्लरिकल जो हम कह सकते हैं जो कास्ट है या फिर जो क्लास है उसको जो प्रिविलेजेस दिया है उनका भी एंड होना. इक्वालिटी बिफोर द लॉ, दैट वी हैड डिस्कस. इक्वालिटी बिफोर द लॉ मीन्स ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. सब क्या है, सब लॉ के लिए सेम है. कोई स्पेशल किसी को स्टेटस नहीं है कि कोई अगर फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर है तो वो कुछ भी चाहे जो कर सकता है, उसके खिलाफ कोई भी केस नहीं होगा या उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी. ऐसा नहीं है, सब इक्वल है लॉ के लिए. अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है. एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट. ओके, सो बेसिकली हम कह सकते हैं लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, एक डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ सेटअप. ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल को फ्रीडम होती है, एब्सोल्यूट मोनार्की और ऐसा जो भी चीज़ें हैं इनका एंड होता है. इक्वालिटी होती है लॉ की नज़र में. एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके अकॉर्डिंग वो कंट्री है जो रन होगा. और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, दैट वी यूज अ राइट टू वोट. वी इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव हु इन टर्न रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ country. Okay,
So this is what the you can say liberal nationalism means. So I hope now you know the difference between liberalism and liberal nationalism. Okay. So children, one thing I wanted to tell you, the very important thing what I feel, we usually use the two words. What is the difference between the liberty and the freedom? हम यूजुअली क्या समझते हैं, लिबर्टी और फ्रीडम क्या है, एक ही चीज़ है, दोनों का मतलब होता है आज़ादी या हम कह सकते हैं फ्रीडम. ओके, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम. लिबर्टी फ्रीडम हम यूजुअली इनको सिनोनिमस की तरह यूज़ करते, दोनों को सेम मानते हैं, लिबर्टी भी यूज़ कर लेते हैं, कई बार उसको फ्रीडम यूज़ करते हैं. बट चिल्ड्रन, आई वॉन्ट टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स. इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है. लिबर्टी एक हम हिंदी वर्ड आज़ादी है जैसे, उससे हम समझेंगे. तो लिबर्टी का मतलब क्या होता है, वो आज़ादी जो हमें नेचुरली मिलती है. ठीक है, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ का जो आपका जो यानी कि जो जीने का जो अधिकार है वो आपको नेचुरली मिला है, वो किसी ने दिया नहीं है. ऐसा नहीं होता कि कोई न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न होगा फिर कहेगा नाउ गिव मी माय राइट टू लाइफ, मुझे जीने का अधिकार दो. क्या ऐसा होता है? नो. यानी कि वो आज़ादी जो एक पर्सन को नेचुरली मिलती है उसको हम कहते हैं लिबर्टी. लेकिन वो आज़ादी जो पर्सन को किसी और से मिलती है उसको हम कहते हैं फ्रीडम. उसको हम कहते हैं फ्रीडम. ओके, यानी कि हम कहते हैं ना इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. ऐसा क्यों कहते हैं हम? ये क्यों नहीं कहते कि लिबर्टी मिली इंडिया को? नो, फ्रीडम मतलब जो हम किसी जो आज़ादी हमें किसी और से मिलती है हम उसको क्या कहते हैं? फ्रीडम. आपने सुना होगा फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस. क्या आपने हम ये क्यों नहीं बोलते लिबर्टी स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस? यानी कि हमें वो आज़ादी जो हमें किसी और से मिलती है हम उसको क्या बोलते हैं? फ्रीडम. ओके, सो इंडिया को जो आज़ादी मिली वो ब्रिटिशर्स से मिली, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को फ्री किया, तो दैट इज़ वाई वो क्या है? लिबर्टी. ओके, सो दोनों का मतलब हम यूजुअली हम एक यूज़ कर, लेकिन चिल्ड्रन एज अ सोशल साइंस स्टूडेंट इफ यू आर इन क्लास 10 सो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स, द डिफरेंस बिटवीन दैट. यानी कि वो आज़ादी जो हमें नेचुरली मिलती है जैसे कि राइट टू लाइफ उसको हम लिबर्टी कहते हैं, और वो आज़ादी जो हमें किसी और से लेनी पड़ती है या किसी और से मिलती है हम उसको क्या कहते हैं? राइट टू फ्रीडम, या हम कह सकते हैं उसको हम फ्रीडम कहते हैं. क्लियर है? जैसे हमारे पेरेंट्स यूजुअली कहते हैं हमने तुम्हें इतना फ्रीडम दिया है, यानी कि वो आज़ादी जो हमें हमारे पेरेंट्स से जो हमें जो हम कह सकते हैं फ्रीडम जो मिल रही है, जो चीज़ें करने का जो हमको राइट मिल रहा है वो हो जाएगा हमारा फ्रीडम. और जो हमारा राइट टू लाइफ जो हमारा नेचुरल जो राइट है, जो नेचुरल हम जो अपने आप से जो हमको वो हम कह सकते हैं आज़ादी, उसको हम क्या कहेंगे? लिबर्टी. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. आज के बाद आप कभी भी इन दोनों को एक तरह के या सिनोनिम की तरह यूज़ नहीं करेंगे. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू. नाउ अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815. After the defeat of Napoleon, nationalism came to be attached to more conservative ideas or conservatism. Okay, so nationalism जो थोड़ा सा हम कह सकते हैं जो इनकलकेट हुई थी फीलिंग, वो बाद में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कंजर्वेटिव जो आइडिया होते हैं या कंजर्वेटिज्म जो है आइडियोलॉजी, उससे वो कोलैप्स हो गई या उसके साथ में वो हम कह सकते हैं मिक्सअप हो गई. ठीक है, यानी कि वापस से नेशनलिज्म की जो वैल्यू थी वो डिक्रीज होना शुरू हो गई. ओके, conservatives believed that established traditional institutions of state. Children, conservatism का मतलब क्या होता है? old beliefs, old ideas को follow करना. orthodox जो कई बार हम कहते हैं ना बहुत conservative लोग हैं या बहुत orthodox है, यानी कि पुरानी सोच या old ideas या beliefs को blindly follow करना. okay, so हम कह सकते हैं they believe that established traditional institutions of the state and society. यानी कि वो कह रहे थे जो ठीक है हमें क्या करना फ्रीडम से, जो ठीक है जो एब्सोल्यूट मना की चली आ रही है उसी को फॉलो करो, उसी में हम मिक्सअप हो जाएं, हम क्यों चेंज करना. यानी कि ये जो हम कह सकते हैं जो कंजर्वेटिज्म वाली जो आइडियोलॉजी है या जो है ना ऐसे जो लोग हैं वो क्या बिलीव करते हैं कि ठीक है जो एस्टैब्लिश जो चला आ रहा है हमें उसी को फॉलो करना चाहिए, हमें इनको चेंज नहीं करना चाहिए. ओके, लाइक द मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व. ये बोलते हैं कि जो हमारे ओल्ड जो बिलीफ है, हमारा जो गवर्नमेंट यानी कि जो हमारी मोनार्की है या हमारी जो चर्च है, सोशल हायरार्की यानी कि सोसाइटी में जो स्टेटस जो बना हुआ है 3 क्लासेस में जो सोसाइटी डिवाइड है, या जो प्रॉपर्टी का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन या जो हमारे फैमिली का सेटअप है, उनको हमें वो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करना चाहिए. उन ओल्ड चीज़ों को हमें प्रिजर्व करना चाहिए, ना कि हमें उनको चेंज करना चाहिए. ठीक है. द बॉर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन
deposed during the French Revolution was restored to the power. यानी कि आप समझ रहे हैं, नेशनलिज्म से जो कई चीज़ें जब थोड़ी सी इम्प्रूव होने की कोशिश हुई थी या इम्प्रूव हुई थी, वहाँ पे ये कंजर्वेटिस्ट जो लोग हैं या कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोगों ने वापस से नेशनलिज्म की आइडिया को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, ठीक है। यानी कि वो डायनेस्टी जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय बिल्कुल एनेक्स हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, वो वापस से उस टाइम ना पावर क्या कर लिया, रिस्टोर कर लिया, ओके। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड अनेक्स अंडर नेपोलियन, यानी कि नेपोलियन में जो भी अपने एफर्ट्स किए थे, जो भी कंट्रीब्यूशन करके अपने कंट्री के लिए जो किया था, वो सब कुछ यहाँ पे नल एंड वॉइड हो गया, ओके। यानी कि वो डिटोरेट होना शुरू हो गया। बट द जर्मन confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched। लेकिन कुछ जो हम कह सकते हैं जर्मन जो कंट्री है या फिर जर्मन जो रीजन से 39 जो स्टेट्स है वो कहीं ना कहीं अनटच थे, वो उनको थोड़ा सा हम कह सकते हैं उनको नुकसान नहीं हुआ था। तो यहाँ पे कुछ ये सिचुएशन ये मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं वो थोड़ी डिटोरेट होनी शुरू हो गई थी, लेकिन कुछ स्टेट्स थे नेपोलियन ने जिनको रिस्टोर किया था या बचाया था, वो यहाँ पे प्रिजर्व थे या फिर अनटच्ड थे, ओके। Now, conservative regimes set up in 1815 were autocratic। रिजीम मतलब क्या होता है, रूल, यानी कि जो कंजर्वेटिव जो रूल है या कंजर्वेटिव जो सिस्टम है जो 1815 में जो सेटअप हुआ था, वर ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मीन्स एब्सोल्यूट, ओके। द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कंटिन्यू टू इंस्पायर द लिबरल्स, ओके। सो जो मेमोरी, देखो पूरी तरीके से सब चीज़ें स्पॉइल नहीं हुई है, कहीं ना कहीं जो लोग लिबरल्स या जो रेवोल्यूशनरी जो हैं जो फ्रीडम दिलाना चाहते हैं उनमें अभी वो चीज़ें हैं, लेकिन जो नॉर्मल क्लास है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से अफेक्ट हुई है। वन ऑफ द मेजर इशूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वॉज द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ओके। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं लिबरल जो नेशनलिस्ट है उन्होंने फ्रीडम ऑफ द प्रेस यानी कि जो प्रेस का जो राइट है, ठीक है, यानी कि पब्लिशिंग ऑफ द न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, मैगजीन्स, उस राइट को उन्होंने यूज़ करना शुरू किया और लोगों को अवेयर करना शुरू किया, फिर से उनमें वो चीज़ें इनकलकेट करना शुरू की, ओके। सो जो इनका न्यू कंजर्वेटिव जो आया था हम कहते हैं ऑर्डर, तो उसको कहीं ना कहीं इन्होंने लोगों में हम कह सकते हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने से रोका और उनको फिर से वो चीज़ें जो उन्होंने डेवलप की थी नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी उसको रीस्टोर करने की कोशिश करी। नाउ द रेवोल्यूशनरीज आपको पता है चिल्ड्रन में डिस्कस किया था। रेवोल्यूशनरीज मतलब क्या होता है, क्रांतिकारी, जो वायलेंट, जिनको बस वायलेंट मीन्स से या हिंसा से या लोगों को हम कह सकते हैं मतलब फ्रीडम दिलानी है उनको बाय हुक और बाय क्रुक, ओके। सो ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड, यानी कि क्या हुआ, जब उनको लगा कि वापस से कंजर्वेटिव ऑर्डर आ गया, लोग वापस से कंजर्वेटिज्म की तरफ जाए, तो उन्होंने क्या किया, अब अंडरग्राउंड होना शुरू कर दिया। अब उन्होंने सोचा कि अब बिल्कुल ऐसे स्ट्रैटेजीज हम नहीं बनाएंगे, हम अंडरग्राउंड होकर प्लानिंग करके इनके अगेंस्ट चीज़ें करेंगे या हम अपने कंट्री को फ्रीडम दिलाएंगे, ओके। सीक्रेट सोसाइटीज sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas। So सीक्रेट सोसाइटीज़ जो होती है या वो सीक्रेट जो रेवोल्यूशनरी क्लब्स है वो ओपन होना शुरू हो गए, जो रेवोल्यूशनरी को ट्रेनिंग दे रहे थे कि किस तरीके से हम पूरे कंट्री में स्प्रेड कर सकते। देखो इंडिया में भी सेम यही चीज़ है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि इंडिया का जो 1857 का रिवोल्ट है वो कहीं ना कहीं क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है। यहाँ पे भी जो लोगों ने है, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद है, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल है, इन्होंने मिलके काकोरी केस जो इंसिडेंट था, जो ट्रेन रॉबरी वाला इंसिडेंट था, उसको उन्होंने वो चीज़ की थी। तो इस तरीके से जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, जो रेवोल्यूशनरी जो एफर्ट्स किए थे ना, तो वो यहाँ पे फ्रांस में भी लोगों ने जो रेवोल्यूशन है उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बना के और फ्रीडम दिलाने की अपनी तरफ से पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, ओके। वन सच इंडिविजुअल मीन्स वन सच रेवोल्यूशनरी हम कह सकते हैं वॉज द इटालियन रेवोल्यूशनरी जिसेपी मैजिनी। मैजिनी का नाम आपने सुना होगा। सो यू हैव टू टेल मी अबाउट, यू हैव टू राइट एटलीस्ट 2 lines about Mazzini, you have to search about him and write me in the comment box। So जिसेपी मैजिनी एक रेवोल्यूशनरी था, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेम है इनका, काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था इनका इटली में, ओके।
He became a member of a secret society of the Carbonari and subsequently founded two secret revolutionary societies. Okay, दो revolutionary societies इन्होंने फाउंड की थी, एस्टैब्लिश की थी. फर्स्ट था आपका यंग इटली, बहुत बार आपने नाम सुना होगा. ओके, प्लीज़ सर्च कीजिएगा, गूगल कीजिएगा, थोड़ा सा पता करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें अबाउट हिम. ओके, यंग इटली इन मर्सेलिस एंड देन यंग यूरोप इन बर्ने टू मेक इटली इंडिपेंडेंट एंड यूनिफाइड. ओके, सो इन्होंने, इसने भी यहाँ पे अपने इटली के लिए, देखो हमने वहाँ पढ़ा था जैसे कि फ्रांस में क्या था, नेपोलियन, यहाँ पे अब इटली में आप देखो मैजनी का कंट्रीब्यूशन है. ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने दो सीक्रेट हम कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी फाउंड की थी. किसको? इटली को इंडिपेंडेंट करने के लिए और यूनिफाइड, यानी कि जो इटली में जो रीजन्स जो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, डिविजन्स हुए हैं, उनको एक करना, पूरे एक कंट्री को बनाना, अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट करना, यूनिफाई यानी कि उसका वापस से इंटीग्रेशन करना, यानी कि जो डिविजन्स हो रखे हैं उनको एक कंट्री में लाना, अपना ओन कंट्री फॉर्म करना, उसको फ्री करना एब्सोल्यूट मोनार्की के क्लचेस से. ओके, द एज ऑफ रेवोल्यूशन. इसके बाद में क्या आया था चिल्ड्रन? सो देखो ये जो इवेंट्स है ये ऑर्डर में चल रहे हैं, ये पूरा आपका जो हम कह सकते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म के सारे अलग अलग स्टेजेस है, किसके बाद क्या कॉन्सेप्ट हुए या क्या आइडियोलॉजीज आई. सो नेक्स्ट जो थिंग है यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? द एज ऑफ रेवोल्यूशंस. रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है? चेंज. ओके, फ्रॉम 1830 टू 1848 के समय यहाँ पे हम यूरोप में क्या क्या चेंजेस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, as conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in regions of the Europe. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी है कंजर्वेटिज्म एक आइडियोलॉजी है, कंजर्वेटिज्म को फॉलो करने वाले कुछ लोग हैं, कुछ लोग वहाँ पे ऐसे भी हैं जो लिबरलिज्म या नेशनलिज्म को फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, ये दोनों अपोजिट में है, दोनों अपनी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट कर रहे हैं अपनी सोच को या अपने जो उनकी मेंटालिटी है उसको लोगों में फैलाने के लिए. ठीक है, सो इनके बीच में यहाँ पे जहाँ पे कंजर्वेटिज्म अपनी पावर को कंसोलिडेट यानी कि वापस से जहाँ पे वो रीस्टोर कर रहे थे ऐसे लोग, तो वहाँ पे जो लिबरलिस्ट है या फिर जो नेशनलिस्ट है वो भी कहीं ना कहीं अपनी पावर को क्या कर रहे थे? इंक्रीज कर रहे थे यूरोप में. ओके, नाउ द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस. जैसे कि मैंने डिस्कस किया, अब देखो रेवोल्यूशनरी की एक्टिविटीज़ यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो गई हैं? शुरू हो गई. ओके, सो द फर्स्ट अपहीवल took place in France in July 1830. The Bourbon kings, who had been restored to the power during the conservative reaction after 1815, were now overthrown by the. देखो फिर से वही चीज़ें हुई, पहले नेशनलिज्म डेवलप हुआ, उसके बाद में नेशनलिज्म को थोड़ा सा हार्म हुआ, कंजर्वेटिज्म आया, बॉर्बन सोसाइटी जो है, बॉर्बन डायनेस्टी जो उन्होंने अपनी पावर अपनी रिस्टोर करी. अभी वापस से जो लिबरलिस्ट या जो नेशनलिस्ट उन्होंने वापस से अपनी पावर क्या की? बॉर्बन किंग्स जो है उनसे स्नैच करके वापस से उन्होंने रेवोल्यूशनरीज ने या हम कह सकते हैं लिबरल नेशनलिस्ट जो है उन्होंने अपनी पावर फिर से क्या कर ली? रिस्टोर कर ली. ओके, वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरी हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल. देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है. देखो एक होती है एब्सोल्यूट मोनार्की, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है? जहाँ पे किंग तो हेड है लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, उसकी जो पावर है वो अनलिमिटेड नहीं है. ओके, सो अब इन्होंने क्या किया? ये थोड़े बेटर स्टेज में आ गए, समझ गए ना? सो जहाँ पे पहले एब्सोल्यूट मोनार्की, जहाँ पे किंग के कोई पावर पे रेस्ट्रिक्शन नहीं था, अब यहाँ पे जो किंग है उसके पावर पे रेस्ट्रिक्शन है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही अपना काम करना पड़ेगा या जस्टिस करना पड़ेगा. ओके, विथ लुइस फिलिप एट इट्स हेड. ओके, सो इन्होंने अपना हेड बना लिया था, अपना जो मोनार्क बनाया था लुइस फिलिप को. ओके, दिस रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. Okay, so इसका इफेक्ट क्या है? ब्रुसेल्स, हमने ये चैप्टर में पढ़ा था अपने सिविक्स के चैप्टर में. ठीक है, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स. ओके, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स. ठीक है, द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक्स विच बिगन इन 1821. देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक जगह से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, अभी वो कंट्री उसमें वो रीजन्स थे, ये जो इंडिपेंडेंस का जो रिवोल्ट है वो क्या हो रहा है? एक तरीके से स्प्रेड हो रहा है, हर कोई इसी से इन्फ्लुएंस हो रहा है और पूरे यूरोप में अभी जो है इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट है, जो रेवोल्यूशन है वो शुरू हो गए. तो इसी का तरीके से हम कह सकते हैं ग्रीक में भी ये जो है वो एक्टिविटीज़ शुरू हो गई, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल स्टार्ट हो गए. ओके, नेशनलिज्म
in Greece got support from other Greeks living in exile. Exile means जेल में. तो यानी कि देखो ग्रीस में भी क्या हो गया है अभी, नेशनलिज्म का जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म होना शुरू हो गया है, या हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल है वो शुरू हो गया है. एंड ऑल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर. फाइनली द ट्रीटी ऑफ Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation. तो ठीक है, सो जो यहाँ पे जो रेवोल्यूशनरी जो एफर्ट किए थे उस वजह से ग्रीस को इंडिपेंडेंस. चिल्ड्रन, सो मैंने इस चैप्टर को जितना हो सके शॉर्ट करने की कोशिश की है, और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो कंटेंट है उसी को मैंने इंक्लूड किया है. तो यही आपके चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी है, यही आपके चैप्टर के नोट्स है. ओके, सो इफ़ यू विल गो थ्रू दीज नोट्स और यू विल गो थ्रू द चैप्टर, द थिंग इज सेम. ओके, सो मैंने इसको जितना शॉर्ट हो सके, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे एलिमिनेट नहीं की है, उन्हें शॉर्ट करने की कोशिश की है, या जितना आपको इंपॉर्टेंट है ज़रूरी है उतना आपको मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है. ओके, सो इस तरीके से 32 में जो है वो ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया. ओके, नाउ द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग. द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन. यानी कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो सिर्फ वॉर करने से या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करने से या टेरिटरी का एक्सपेंशन करने से नहीं आई है, और भी काफ़ी सारे फैक्टर जिनकी वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग जो क्या है लोगों में इनकलकेट हुई है. क्या फैक्टर है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन. कल्चर का भी यहाँ पे क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है. आर्ट एंड द पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प्ड एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स. ओके, सो हम कह सकते हैं पोएट्रीज जो है, स्टोरीज़ है. देखो आपने देखा होगा हमारे भी इंडिया में क्या है, बहुत सारे नेशनलिस्ट जो है पेट्रियाटिक सॉन्ग्स बने, वो कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर करते हैं. यहाँ हमारा जब नेशनल एंथम हो जाए तो हमें ऐसे गूज बम्स होते हैं, हम एकदम हमें एक वो कंट्री की जो फीलिंग है, जो नेशनलिज्म की फीलिंग एकदम से इनकलकेट हो जाती है. ओके, सो यहाँ पे जो है नेशनलिज्म में ना सिर्फ ये जो वॉर्स हुए, जो रेवोल्यूशनरी की एक्टिविटीज़ हुई, उनकी वजह से ही नेशनलिज्म नहीं स्टार्ट हुआ या वैसी फीलिंग नहीं है, बाकी और फैक्टर्स भी जैसे कल्चर हो गया या पोएट्री, जो स्टोरीज है, जो आर्टिस्ट ने उस समय जो पोएट्रीज या स्टोरीज लोगों को इंस्पायर करने के लिए, उनमें पेट्रियोटिज्म जगाने के लिए जो चीज़ें, जो एफर्ट्स किए थे, तो इन चीज़ों का भी क्या है, इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन है. ओके, now so we had discussed about the factors that influence the nationalism. We had discussed about the culture, then poetries and so many other things. Now romanticism. Romanticism क्या होता है, क्या था उस समय? A cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. यानी कि एक nationalist sentiment, एक फीलिंग हम कह सकते हैं, एक एक्सप्रेशन डेवलप करने के लिए जो कॉन्सेप्ट था, एक मूवमेंट जो चला था, उसका नेम क्या था? रोमांटिसिज्म. रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स मेड एफर्ट टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज. ओके, सब क्या करें, एक कंट्री से बिलोंग करते हैं तो सबका जो हेरिटेज है, सबका कल्चर है, वो क्या है, कलेक्टिव है, सबका कॉमन है. सबका पास्ट जो है, कल्चरल पास्ट है, वो भी क्या है, कॉमन है एज द बेसिस ऑफ द नेशन. ठीक है, सो इस तरीके से उन्होंने कलेक्टिव हेरिटेज या कलेक्टिव कल्चरल पास्ट की फीलिंग्स उनमें अराइज की अपने रोमांटिक यू कैन से पोम से या अपने ड्रामाज से. ओके, बाकी उन्होंने जो पोइट्रीज वगैरह लिखी, इनके थ्रू उन्होंने लोगों में अवेयरनेस लानी शुरू की या उनमें एक कलेक्टिव फीलिंग जो है अपने हेरिटेज या कल्चर को लेके वो डेवलप की. ओके, लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट. जो लैंग्वेज जो है उसने भी एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. ओके, द एम्फेसिस ऑन द वर्नैकुलर लैंग्वेज. वर्नैकुलर मतलब क्या होता है, रीजनल लैंग्वेजेस. ओके, यानी कि वहाँ पे पर्टिकुलर, देखो स्टेट की अपनी, हम कह सकते हैं हर रीजन की अपनी अपनी क्या होती है, लैंग्वेज होती है. ठीक है, सो वर्नैकुलर मीन्स रीजनल लैंग्वेज, हर एक रीजन की अलग लैंग्वेज होती है. ठीक है, एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर वॉज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशिएंट नेशनल स्पिरिट बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंसेस हु वर मोस्टली इलिटरेट. ओके, सो यानी कि फोकलोर मतलब क्या होता है, जो रीजनल जो आर्ट है उसका इन्होंने सहारा लिया. ठीक है, लोगों में एंशिएंट उनकी जो नेशनल स्पिरिट है जो पहले की, यानी कि इन सब लोगों से नेशनल एब्सोल्यूट मोनार्की से पहले जो लोगों में जो यूनिटी थी या कंट्री को लेके जो भावना थी, उसको उन्होंने वापस से क्या किया, रीस्टोर करने की कोशिश करी. बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंसेस हु वर मोस्टली इलिटरेट. देखो क्या होता है ना, जो इलिटरेट लोग हैं वो मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह नहीं पढ़ते, तो अब उन लोगों में, इलिटरेट लोगों में नेशनलिस्ट की फीलिंग कैसी लाई जाए या उनको कैसे अवेयर किया जाए, तो उनके लिए इन्होंने क्या सोचा कि हमें
आर्ट को, या हम कह सकते हैं बाकी लैंग्वेजेस जो है, रीजनल जो लैंग्वेज जो लोग जानते हैं, तो उसको हमें एज अ सोर्स, एज अ मीडियम बनाना चाहिए जिससे हम लोगों को अवेयर कर सकें, ठीक है। सो इस तरीके से जो लार्ज ऑडियंसेस से जो इलिटरेट लोग थे उनको भी, उनमें भी नेशनलिस्ट की फीलिंग क्या की, अराइज की गई। ओके, सो आई होप दीज फैक्टर्स आर क्लियर टू यू। सो यानी कि हम कह सकते हैं कल्चर, रोमांटिसिज्म, लैंग्वेज जो है, इनका भी क्या था, एक इंपॉर्टेंट रोल था नेशनलिज्म की फीलिंग को अराइज करने के लिए। ओके, so children, that is all for today's class. I hope this part of this chapter was clear to you. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe to my channel. I will meet you in the next part of this chapter. Till then, bye, take care.